All right. So, so what we're going to start off with today is nutrition in plants. मजे का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है. अच्छा जी. Now, whenever we talk about nutrition in plants, before we talk about the nutrition in plants, we have to understand one thing, that we have different types. We have different types of what we call as modes of nutrition. We have different types of modes of nutrition. Modes of nutrition का मतलब क्या हुआ कि भाई organisms, how are they making the nutrients and how are they gaining energy, right? So now when we talk about modes of nutrition, सबसे पहला जो मोड अब जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, that's us ourselves, right? In the last chapter that we studied, we talked about nutrition in animals, right? We talked about the biological molecules along with the nutrition in animals. So how do animals, or how do they have consume their food, or where do they get energy from? They get energy by feeding on other organisms. Now, those other organisms can either be plants, those other organisms could either be animals, other animals, right? For example, we consume meat. So that mode of nutrition is called as a heterotrophic mode of nutrition, right? And the organisms that carry out heterotrophic mode of nutrition are called as heterotrophs, right? So what is heterotrophic mode of nutrition? It's when organisms feed on other organisms to gain nutrition या फिर energy, या more simply हम और क्या लिख सकते हैं, food, right? When organisms, they feed on other organisms for their energy, right? Now uh, okay, फिर हमारे पास, अच्छा, अगर हम लोग बात करें, for example, just for the sake of it, if I were to ask for examples of the heterotrophs, right? Walaikum assalam, Minal. So the first organisms that are heterotrophic are animals, all of them. ठीक है. दूसरे organ type of organisms हमारे पास क्या है? Fungi. Please remember, fungi cannot photosynthesize. They cannot make their own food, right? और तीसरा organism जो हमारे पास आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा? Bacteria. अब देखो, there's a reason why the bacteria it's infecting us, right? So that it could gain nutrition from us. वरना बैक्टीरिया को कोई शौक नहीं है, it's going to come to infect me. वालेकुम अस्सलाम बच्चे. Now, the second type of, or second mode of nutrition that we have is what we call as an autotrophic mode of nutrition. Auto का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word auto? Auto means self, खुद ब खुद, right? So those organisms that make their own energy, they make their own food, they make their own nutrients, वो हमारे पास क्या होते हैं? They're autotrophs. So these are those organisms, rather autotrophic nutrition is when organisms make their own food, right? हम इसके बजाय we could have used the word nutrients as well. इसकी examples हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी बच्चों? What will be the examples of autotrophs? Number one, the plants. Plants are autotrophic. Plants के अलावा is there any other organism that is autotrophic? We have bacteria. There are some bacteria that are photosynthetic. Manahil, nutrition plants, right? अच्छा, और अगर हम लोग तीन पे जा रहे हैं तो एक और लिख लेते हैं. Let's talk about algae.
Please know that algae is not a plant. ठीक है, algae plant नहीं होते, but they can still photosynthesize. Now, let's talk about the third mode of nutrition, and that mode of nutrition is what it is saprophytic. सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स which take their energy, which gain their energy when they carry out decomposition. Walaikum assalam, Sam. Nothing much, only this. So, what is saprophytic mode of nutrition? When organisms gain energy through what? Decomposition. All right. Acha. Up, if I would ask you guys for two examples or two examples of decomposers, तो मुझे क्या बताओगे? So decomposer की example हमारे पास क्या क्या आ जाएगी मेरे बच्चे लोग? Parasite. What kind of a parasite? Bacteria is a parasite. Virus is also parasite. Parasites are not decomposers. Decomposer कौन से दो organism होंगे? एक तो हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? एक और भी होगा, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, सही है, फाइटोप्लैंक्टन, वेरी गुड, प्लैंक्टन भी आ गया। लेट्स पुट फाइटोप्लैंक्टन राइट हियर। ओके, और एक और, हाँ भाई, tapeworm is a parasite, it's not a decomposer. Very good, Mabsam, very good. The other most important decomposers are the fungi, ठीक है। देखो Ardemir, there's a difference between parasites and decomposers. Parasites are not decomposers. Parasites usually हमारे पास heterotrophs होता है. Because what is parasitism? It's a relationship between two organisms where one organism is harmed and the other organism is benefited, right? So, for example, if you have a tapeworm and if a tapeworm infects somebody else, so it's going to be absorbing the nutrients from from the organism or from a person, but that person is not going to gal nahi jayega. That person is not going to decay. Do we get it? Ardemir bacha? Okay. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ. In the jungle, we have hyenas, we have vultures, and those hyenas and vultures, they feed on dead carcasses. Dead carcass क्या होता है? लाशें बेसिकली, ठीक है। आप लायंस या फिर दूसरे कार्निवोर ने किसी एनिमल, एक डियर को हंट करा, एंड वंस दे हैड देयर फिल, अब जो भी बचा कुचा होगा ना, उसको आके वल्चर्स खाना शुरू हो जाएंगी, उसको हाइनस खाना शुरू हो जाएंगे। सो आर हाइनस एंड वल्चर्स आल्सो डिकम्पोजर्स? Very good, Mustafa. They're not decomposers. They're not decomposers. They are scavengers. They're eating the meat of what we call as the dead organism, right? उसको गला नहीं रहे हैं, ठीक है। गलाने का मकसद क्या होता है कि देखो, for example, organisms are made up of proteins, right? Proteins के पास कार्बन, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। गलाने का या डिके का या डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास whatever the elements that are present in the carbohydrates, the fats, the proteins of a living organism, of a dead living organism, वो सारे के सारे elements would be released off into the atmosphere as carbon dioxide, as water, as oxygen gas, as nitrogen gas, कि organisms would break down into their simplest forms. That's what decomposition is. Scavengers चीजों को गलाते नहीं हैं, right? Okay, so now मुश्किल वाली बात, that we are done with the मुश्किल वाली बात. We'll now talk about how these plants किधर का ये रहे, how they're carrying out this autotrophic nutrition. Again, what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is when organisms make their own food, like when the plants make their own food. So by what process are the plants going to make their food? They're going to do it
by the process of photosynthesis. Now, whenever we are going to talk about photosynthesis, what is photosynthesis? Photosynthesis is a कैसा process? Photosynthesis is an endothermic process. Endothermic processes क्या होते हैं हमारे पास? Where the chemical reaction which would take the energy from the atmosphere, from the surroundings, right? Now that energy, no, not heat. देखो मैं उसी पे आ रहा हूँ मुनीसा बेटे बात. That energy could be any sort of energy. For example, Muniza ने कहा कि से it could be heat, it could be the thermal energy. Kuch endothermic reactions, they also rely on light energy. So we're not going to limit ourselves to heat. It could be chemical energy as well. ठीक है? Very good, Muniza. Very good. मनाइल बेटे साम बिल्कुल ठीक है. वो वाली चीज आ रही है. So एक देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? They are going to take the energy in whatever form that is variable from one वो reaction to another. जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास सिर्फ हीट की फॉर्म के अंदर हो. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि इट कुड बी लाइट एनर्जी एज वेल. मेक सेंस. अब होता क्या है अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखें. सो व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग इन फोटोसिंथेसिस इज कि हमारे पास कुछ एनर्जी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, जिनके बॉन्ड्स के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है. ठीक है. अनस बेटे प्लीज डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम. ओके. सो हमारे पास वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, वी हैव वाटर. ये हमारे पास हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स है बच्चों. ठीक है. In every molecule that we have some bonds, right? Whether ionic, whether covalent, and every molecule have what we call as every bond has a particular energy, right? इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं. एंड हेंस वी आर सेइंग कि भाई इन दो मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी नहीं है. In other words, try to understand this. What I'm saying is that carbon dioxide and guys, focus here. Carbon dioxide and water molecules are energy deficient molecules, right? उनमें इतनी energy नहीं है. But they have to join up together. They have to join up together to produce a what? To produce a molecule of glucose, an energy rich molecule, along with oxygen. ठीक है. अच्छा अब देखो. अब इसकी मिसाल कैसी हुई कि हमारे पास थे एनर्जी डेफिशिएंट कंपाउंड्स, मुझे चाहिए एनर्जी रिच कंपाउंड. अब इसका इसका एग्जांपल वही है कि लेट्स से माय मॉम आस्क्स मी कि बेटा जाके ना यू गेट मी 2 किलो आलूज. और लेट्स से अब्दुल्ला और मैं आलू लेने गए. My mom gave me 100 rupees, but the alus were costing 200 rupees. So what am I going to do? I'm going to, borrow or take 100 rupees from Abdullah. ठीक है? Right. I'm just going to borrow or either I could do things, right? I could just take the money. क्या कर लेगा अब्दुल्ला मेरा? ठीक है अब्दुल्ला, I'm not going to do that, but I could just take the money, right? So इसी तरीके से क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हमारे पास जो है इनमें इतनी एनर्जी नहीं है ना, तो ये एनवायरनमेंट से एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. In what form? In form of light. Either we write sunlight, either we simply write light, doesn't matter. Okay, photosynthesis can occur in the light as well. So this is why is being absorbed during photosynthesis. क्या तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Do we get the concept of it being an exothermic reaction? अच्छा, इसका जो ऑपोजिट होता है ना, इसका जो ऑपोजिट होता है. हाँ आएंगे उस पर आएंगे नुकसान. विल कम टू क्लोरोफिल एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. खैर, इसका जो ऑपोजिट होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. नहीं नहीं, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस चंदा.
मुनीजा, क्या लिखा हुआ है मैंने ये? मैंने ये कहा कि इसका जो ऑपोजिट रिएक्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा? व्हेन ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ उल्टा हो गया ना, मैं एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से एनर्जी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। Right. So the other day, my mom gave me 500 rupees to get her 2 kilo aloo. I had 300 rupees left. What am I going to do with those 300 rupees? I'm going to spend it, right? Let's say with those 300 rupees that we were left with, Abdul or Mane, we had some cola and chips, right? So that's going to be wasted or that's going to be released out. The opposite process that we have is कौन सी वाली respiration? Aerobic respiration. वो exothermic है। ठीक है। ऑलराइट लाइबा बेटे, बात समझ में आ गई अब? ठीक है। लाइबा, डू वी गेट इट? ओके। ऑलराइट, नाउ कम बैक हियर। अब होता हमारे पास क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं बिफोर वी गो फर्दर, व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो, इन हमारे पास यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वी हैव कार्ब इन द रिएक्टेंट्स ओनली, वी हैव कार्बन, वी हैव ऑक्सीजन एंड वी हैव हाइड्रोजन, राइट? ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर भी मेरे पास वही एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मेक सेंस? अब मुझे एक बात ये बताओ, in the reactants in a single molecule of carbon dioxide, how many carbon atoms do we have? One. And how many atoms of oxygen do we have? Two. इसको दोबारा सुनो। In a single molecule of carbon dioxide, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक एटम है किस चीज का? कार्बन का। दो एटम्स हैं किसके? ऑक्सीजन के। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट। सो मेरे पास रिएक्टेंट के अंदर कार्बन के तो एक ही एटम है, बट इन द प्रोडक्ट्स in the molecule of glucose, in a single molecule of glucose, how many atoms of carbon do I have? 6. अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एटम ऑफ कार्बन है, so how many molecules will give me, or how many molecules of carbon dioxide will give me 6 atoms of carbon? Laiba, are you sure? 6, 6, 6। देखो मुनीजा, मैंने कहा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई हैव कितने एटम्स ऑफ कार्बन? वन। So in how many molecules of carbon dioxide will I have 6 atoms of carbon? 6। भाई 1 रुपए की एक टॉफी है, राइट? 6 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? ईशा, आर वी गेटिंग दिस? देखो, अच्छा ईशा, टेल मी समथिंग। दिस राइट हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट बेटे? ये पूरा क्या है? व्हाट इज दिस होल थिंग? कैन यू टेल मी दैट? Carbon dioxide. Is it a molecule of carbon dioxide, beta? And how many molecules have I written right here? How many molecules of carbon dioxide have I shown? 2. No, this right here is a single molecule of carbon dioxide. In a single molecule of carbon dioxide, I have one atom of carbon. And how many atoms of oxygen do I have? 2. Very good. कार्बन का एटम कितना है मेरा बेटा?
आ रहे मिनाइल बिल्कुल ठीक ठीक है। जस्ट लेट ईशा अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट बिकॉज उसको भी तो समझना है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटे? तो ईशा बेटे, दिस होल थिंग इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. A single molecule of carbon dioxide is made when a single carbon atom is joined with how many oxygen atoms, bete? Two. Do we understand it here, bete? तो अब मुझे बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे 6. वेरी गुड. So this larger number that we put behind the molecule represents the number of molecules. अब ये कह रहे हैं कि भाई हारिस तुम्हारे पास अब 6 molecules of carbon dioxide है. Do we understand this now, बेटा? Okay. तो कार्बन तो हमारे पास बैलेंस हो गए, ठीक है. अब let's move on with hydrogens. In a single molecule of glucose, we have how many atoms of hydrogen? 12. Right? Isha, help me out with this. Isha, help me out with this. ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है. इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? सिर्फ 12. वेरी गुड, वेरी गुड. अगर हम लोग रिएक्टेंट्स की तरफ आए, दीज आर द रिएक्टेंट्स, राइट? दीज आर द रिएक्टेंट्स इन अ, ये दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कैन यू टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डू आई हैव इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, चंदा? वेरी गुड. तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 12 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे? वेरी गुड मेरा बेटा. तो यहां भी लगा देंगे हम लोग 6. हाइड्रोजन से बैलेंस हो गए. अब बारी आती है ऑक्सीजन की. सॉरी, अब बारी आती है ऑक्सीजन की. अब मुझे बताओ, इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? 6 में कितने हो जाएंगे? ईशा, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड if one molecule of carbon dioxide had 2 atoms of oxygen, 6 molecules are going to have how many? 1 रुपए की 2 टॉफी आ रही हैं, 6 रुपए की कितनी टॉफीज आएंगी? ईशा, ईशा, 6 2 आर 12. राइट, थैंक यू, थैंक यू. हाँ ठीक है मैम साहब, आई नो, आई नो. ऐसे ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब इसको देखो. अब मुझे एक और चीज बताओ, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाउ मेनी ऑक्सीजन डिड आई हैव? ईशा, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, in one molecule of water, look here, in a single molecule of water, how many oxygen atoms can you see? Isha, where do you see 6? 1, thank you. I'm talking about a single molecule of water now. तो 6 molecules of water में कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी बेटे? थैंक यू, थैंक यू. तो रिएक्टेंट्स में टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? 18, राइट? प्रोडक्ट्स में कितनी है? 6 + 2. 6 + 2 इज 8. अब इनको मैं 18 कैसे कर सकता हूँ? 18 - 6 is what? 12. 6 2s are 12. हो गई 18. 6 2s are 12 plus 6 right here in a molecule of glucose. 12 plus 6 is 18. Do we all get this? सबको वाली बात समझ में आ गई बच्चे लोग? All right, ठीक है. See, I'm sorry for wasting so much time on the balancing, but this balancing is important. We need to know how to do this, not only for this, but for in chemistry as well. इस तरीके से करो, बैलेंस करके तो चीजें आसान हो जाएंगी. All right, okay, okay, okay. Now let's come back to planet Earth. Now, so this is the equation of photosynthesis, right?
Now, what is the next thing that we're supposed to know? दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस का, ये एक वन वे रिएक्शन नहीं है. दिस इज नॉट अ वन वे रिएक्शन. इट टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स. जो उसका पहला स्टेप होता है, इट रिक्वायर्स लाइट. जो दूसरा स्टेप होता है, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट. द स्टेप दैट रिक्वायर्स लाइट is called as the light dependent stage. What happens in the light dependent stage is light is used. जो मेरे पास दूसरा वाला स्टेज होगा जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होगी, उसे मैं क्या बोल दूंगा? लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज. राइट? मेक सेंस? अब लाइट इस्तेमाल क्यों होती है? हमारे पास water molecules. So the light is basically used to split the water molecules. What happens is मेरे बच्चों, हमारे पास ये जो water molecules होते हैं ना, they are broken down in the presence of light into two things: hydrogen atoms, not gas, hydrogen atoms, and oxygen molecules, oxygen gas. This oxygen gas is released off as what? As a waste gas. Some of it may be used in respiration, but most of it is released off as a waste gas. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस के अंदर मैं कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ? 6. राइट? अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के मेरे बच्चों? 12. वेरी गुड. ठीक है. एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्सीजन का एटम है, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 6. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ, इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डू आई हैव, ईशल? In a single molecule of oxygen, how many atoms of oxygen do I have? 2. तो 3 molecules of oxygen के अंदर कितने atoms हो जाएंगे मेरा बच्चा? वेरी गुड बेटे, वेरी गुड. अब बात समझ में आ रही है ईशा बेटे? राइट. लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलते हैं. निकलेंगे, 3 और आएंगे. ठीक है, कैसे आएंगे अब इसको देखो. तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज के अंदर हमारे पास वाटर क्या हो रहा है? वाटर टूट रहा है इनटू टू थिंग्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड oxygen. Whatever the oxygen that would be produced would be reduced off into the environment. Now let's see what happens to the hydrogen atoms. These hydrogen atoms are used in the light independent stage where they combine with carbon dioxide. So these hydrogen atoms, 12 of them, combine with 6 molecules of carbon dioxide so that we can get a molecule of glucose, C6H12O6. ठीक है. अब इसको एक बार आखिरी बार बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग बस आखिरी पार्ट. ओके. अब मुझे बताओ, मेरे पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 है ना. इन सिंगल मॉलिक्यूल एक था, 6 मॉलिक्यूल में 6 आ गए. ग्लूकोज के अंदर भी कितने ऑक्सीजन कार्बन एटम्स हैं? 6. कार्बन इज बैलेंस्ड. यहाँ मेरे पास कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 12. यहाँ भी कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 12. मेक सेंस? इजी. लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीजन नाउ. इस पॉइंट के ऊपर ऑक्सीजन कितनी है? 6 2 जार 12. राइट. इधर लेकिन ऑक्सीजन कितनी है मेरे बच्चों? 6. तो कितनी ऑक्सीजन कम हो रही है? बाकी 6 atoms of oxygen है ना. Those 6 atoms of oxygen will be released into the atmosphere. Again,
as a waste gas. तो मेरे पास टोटल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स निकले, लाइट इंडिपेंडेंट से निकले, ठीक है। लाइबा बिकॉज इट रिक्वायर्स एंजाइम्स, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट। लाइट को जो एनर्जी देनी थी ना बेटे, वो इसकी स्प्लिटिंग के अंदर देनी थी सिर्फ, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गए। मेक सेंस? ओके ओके। अच्छा, अब हम लोग एक और, नाउ दैट वी नो दिस, नाउ दैट द केमिस्ट्री इज आउट ऑफ द वे, नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, the organism where we are studying photosynthesis in is what? Is the plant, right? ठीक है। In which organ of plants does photosynthesis takes place? कौन से वाले ऑर्गन के अंदर हो रहा है? ऑर्गन, वेरी गुड। इट्स टेकिंग प्लेस इन द लीव्स, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, इन द लीव्स। Which organs are made up of tissues? Which tissues are responsible to carry out photosynthesis? हमने कहा the mesophyll tissues, ठीक है। mesophyll tissue, mesophyll आयशा बेटे, mesophyll tissue। अब इस टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? A tissue is made up of many types of many cells joined up together. Those cells could be of the same type, they could be of different types as well, isn't it? तो यहाँ हमारे पास जो मीजोफिल टिश्यू है, उसके सेल्स कौन कौन से हैं? अब तुम लोग मुझे बताओगे कि सर पेलिसेड सेल्स हो सकते हैं या पेलिसेड मीजोफिल हो सकता है। वी कैन ऑल्सो हैव स्पंजी मीजोफिल सेल्स। उसके अलावा एक और सेल होता है हमारे पास, तो हम लोग इसको लिखते हैं एंड, और फोटोसिंथेसिस किधर हो रहा है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स लेकिन मीजोफिल टिश्यू में नहीं होते। नॉट स्टोमा, स्टोमा इज नॉट अ सेल बेटा। Stomata is not a cell. Stomata is not a cell. The very same way my nostrils are just empty spaces, my air canals are empty spaces. Stomas or Isha. Exactly. Thank you, Muniza, for asking this question that I had in mind. नहीं मिनाहिल, गार्ड सेल्स किधर होते हैं मुझे बताओ? आर दे प्रेजेंट इन द लीफ मेरा बेटा? इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन गाइस। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं हो, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, बस एक आखिरी बात मुझे बताओ, इन विच ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस अकर भाई? In which organelle? We know this. Very good, Mafsam. Very good, Mustafa. Chloroplast. ठीक है, very good. अच्छा, अब देखो, up now the next thing that we have on our list is the structure of chloroplast. ठीक है। अच्छा, chlorophyll is a pigment, that it's not an organelle. ओके, ये इतना सारा वो क्यों हुआ? अच्छा, अब अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट वी कॉल एज अ बाय मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ठीक है। उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी वाली मेम्ब्रेन हो जाएगी? आउटर। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी हो जाएगी? इनर। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होगी वो कौन सी हो जाएगी?
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड होता है, सो दिस इज द फ्लूइड दैट वी हैव राइट हियर। दिस फ्लूइड of the chloroplast is called as stroma. Do not confuse it with the stoma. It is stroma. What is stroma? Stroma is the fluid that is present where? In the chloroplast. जिस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर स्टोमेटा, राइट? ये स्ट्रोमा है, इट हैज एन आर राइट हियर, स्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज क्या होती है, हम लोग क्या देखते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है और वो कुछ यूं जारी होती है, राइट? इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। याद करना कर लो, नहीं करना नहीं करो। इट्स कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट। इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से। दीज आर बेसिकली पिगमेंटेड प्रोटीन्स। दीज पिगमेंटेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? अब बताओ मुझे। These pigmented proteins that we have, these pigmented proteins are what we call as chlorophyll. और क्लोरोफिल का एक प्राइमरी काम क्या है? दैट दीज क्लोरोफिल्स दे एब्जॉर्ब लाइट। और अब जल्दी से मुझे एक बात ये बता दो, विच मिनरल आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल? मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम। मुस्तफा, नाइट्रेट क्या करता है? नाइट्रेट तो वो अमीनो एसिड्स बनाएगा चंदा। बरीरा बेटे, अर्दमीर बेटे, मनाहिल, मनाल, आर वी गेटिंग दिस? साइमा बच्चा, बजिया, जैनब, महमूद। नाइट्रेट आयंस तो बेटे अमीनो एसिड्स बनाएंगे ना मनाहिल? ठीक है, ओके ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा, अब एक छोटी चीज मुझे बताओ बिफोर वी मूव ऑन। इफ आई वुड गिव यू टू ऑप्शंस, इफ आई वुड गिव यू टू ऑप्शंस, द ऑप्शंस आर स्ट्रोमा एंड क्लोरोफिल, where do you think light dependent stage would occur? Where do you think light independent stage would occur? बिल्कुल आइजा बेटा, वो ग्रीन कलर का होता है ना, पिगमेंटेड प्रोटीन दैट इज ग्रीन इन कलर। तो जो लीफ का कलर होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट्स गोइंग टू बी द कलर ऑफ द कलर ऑफ द पिगमेंट इज गोइंग टू बी द कलर ऑफ द लीफ, ठीक है। फर्स्ट वुड अकर, वेरी गुड। देखो देखो, अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लाइट डिपेंडेंट जो है वो तो उस जगह के ऊपर होगा ना जहां लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी। सो वेयर इज लाइट एब्जॉर्ब? वेरी गुड ईशल, लाइट डिपेंडेंट इन द क्लोरोफिल। और लाइट इंडिपेंडेंट किधर होगा? स्टोमा के अंदर होगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अच्छा जी, अब नाउ 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 दैट वी नो दिस, इसको देख लो अगर देखना है तो दोबारा, ठीक है। मोटा मोटा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, राइट? अब मुश्किल चीजें अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आसान आसान चीजें पढ़ेंगे, राइट? नाउ वी गोइंग टू स्टिक टू लीफ, ठीक है। अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, और विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो एंजाइम्स की तरह है, ग्राफ्स हैं, so nothing very difficult, right? Now, this is the chapter, this is the very the chapter. Now, come back here. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि if I would give you a heart, so an oversimplified structure of the heart would look something like this. Heart का काम क्या है? It pumps the blood, right? Why is it able to pump the blood? Is because it has an empty space where the blood could fill in. It has muscles so which could contract, forcing the blood out, right? इसी तरीके से
why can muscles contract and relax is because they've got these proteins which are able to contract and which are able to relax. ठीक है? Why do kidneys carry out detoxification is because they've got these nephrons. अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई why is absorption occurring in the ileum not in duodenum, क्योंकि इलियम के अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज करने के लिए विलाय है और हर विलाय के सेल के ऊपर माइक्रोविलाय है. ठीक है? वेरी गुड मुक्साम. अच्छा जी, तो खैर बात समझने वाली क्या है कि एवरी ऑर्गन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन इट इज अडेप्टेड, उसकी कुछ अडेप्टेशन होती है. तो लीफ इज द ऑर्गन दैट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, राइट? उसकी अडेप्टेशंस क्या? ठीक है. अब बिफोर वी टॉक अबाउट दोस अडेप्टेशंस, बिसाइड्स वाटर को हटा के, what are the three things that are required by photosynthesis? तो अगर हम बात करें कि what are the factors affecting rate of photosynthesis, तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आते हैं. ठीक है? महमूद बचा, ह्यूमिडिटी जो हमारे पास है वो तो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करती है ना. वेरी गुड एडिशन. तीन चीजें भाई हमारे पास. नंबर वन इज लाइट. भाई लाइट नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. लाइट के अलावा हमारे पास और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, कोई मसला नहीं है बच्चा, गलतियां करो सो दैट आई कैन करेक्ट यू. ठीक है. और तीसरी चीज, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वाटर के अलावा ईशा, because photosynthesis is a biological process, it cannot occur without enzymes. एंजाइम्स के रेट को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, डू वी गेट दिस? अच्छा, और उसके उसके अलावा हम लोग फिलहाल टेम्परेचर के अलावा हम लोग वाटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फैक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम लोग इसको दोबारा लिख लें तो हम लोग लिख लेते हैं, फैक्टर्स पे अभी नहीं जाते हैं, अभी हम लोग आसान वाली बात करते हैं. हम कहते हैं व्हाट आर द रिएक्टेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, पहले विल स्टिक टू द इजी पार्ट बिकॉज आई जस्ट रियलाइज वी हैव वेरी लेस टाइम. ठीक है, तो हमारे पास ना, इट्स ओके, काट दो. ही आ गए ईशा, आ गए वाटर के ऊपर. ठीक है. अच्छा जी, नाउ 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 आयशा, which plants they require light. They may not require very high sunlight but they do require light. खैर, come back here. अब अगर मैं कहूं कि भाई लीफ जो है ना वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लीफ की हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अडेप्टेशंस भी होंगी जिनको मैं देख पाऊंगा माइक्रोस्कोप के अंदर, and there are going to be some adaptations of the leaf which are going to be macroscopic. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? जो मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, अगर मैं लीफ को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, ये वजह है जिनकी वजह से इसके इट्स एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, राइट? सो we'll keep those adaptations for the next class. I hope you guys have a good day.